Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the subject of operating system, and today is our first lecture of operating system. In this lecture, the contents are included. The first is we will discuss about the introduction and purpose of the course. Next, organization of a computer system and purpose of computer system, in which the setting the stage for OS concepts and principles, outlines of topics to be discussed in the course, and we will discuss about what is an operating system. So first of all, we will discuss about what is a computer system. There are the four major components of computer system, in which number one, hardware, second, operating system, third, application programs, and the fourth one are users of the computer system. These are the very important components of computer system. In hardware, all the input output devices, peripheral devices, all the storage devices are included, and in operating system we will see, as we know that the operating system is the soul of computer system. We cannot run the application program without the existence of a operating system. And the next one will be application programs. Application programs are the user program built on the demand of a users. For example, the databases, the compilers, the editors, for example, the Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, and all the different compilers of C, C++, Java, Python, the database management systems. These are all the application programs. And the fourth and necessary component is users. There is a no valuable importance of all the other hardware, operating system and application program without the users. ये जो हमारे पास चारों हमने कंपोनेंट्स देखे, ये चारों बहुत नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं. यहाँ पे बड़ा हमें डिटेल में इसको समझना पड़ेगा कि जैसे हार्डवेयर में सारी इनपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, और इसमें सारी आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, और इसके साथ जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, आप यूएसबी, सीडी रोम एंड डीवीडी रोम, USB. These are the permanent storage devices, or and also the processor. Processor will also be included in hardware, and motherboard, buses. And the next is operating system. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रूह की तरह काम करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की. इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, तो हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ये है कि विंडोज़ की बात करेंगे, लिनक्स की बात करेंगे, यूनिक्स, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड आल्सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम इनके फिर आगे फ्लेवर्स की हम बात करेंगे. तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, 95, 98, विंडो XP. these are the flavors of Windows operating system. फिर हम यूबंटू, सोलारिस, रेड हैट, अगर हम इनकी बात करें तो ये फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर हम डॉस की अगर बात करें तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे चलने वाला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Macintosh operating system is specifically designed for the Apple's computer systems.
तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके हमने अभी नाम देखे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में जैसे हमने देखे कि एडिटर्स, कंपाइलर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये इसके अलावा और भी ऐसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़र की डिमांड पे बनाए, यूज़र की नीड पे बनाए, कुछ जनरल नीड में हैं, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। these are used to solve the different problems of a user. And also the fourth one is how users, यूज़र्स के अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले वो इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें प्रोग्रामर, एनालिस्ट, डिज़ाइनर्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लोग, टेस्टर्स, इसके अलावा जो है वो आपके मेंटेनेंस के लोग, डिप्लायर्स, बैंक्स में जो है वो जो मैनेजरियल लेवल के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग, कैशियर्स, आप मतलब जिस फील्ड में भी आप देखेंगे तो आपके ये सारे के सारे यूज़र्स हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सो ऑन. These are the four major components of computer system. The next one, this is the layered view of a computer system, in which we can see that first of all कंप्यूटर हार्डवेयर है. कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम सिस्टम और एप्लीकेशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है उनको रन कर सकते हैं. जैसे वो यहाँ पे लिखता है कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम, सो ऑन. और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के मिलने से जो कम्बिनेशन बना, उसको यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो आपके फिर फर्दर आगे उसके यूज़र्स हैं. हम पहले स्लाइड में इसको देख चुके हैं कि वो यूज़र्स कौन से हैं. तो ये एक लेयर्ड व्यू है कंप्यूटर सिस्टम का. इसके बाद हम बात करेंगे पर्पज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम का पर्पज़ क्या है. उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम, एज वी नो दैट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर that are combined to provide a tool to solve specific problem in an efficient manner. And also the purpose of computer system is to execute the programs. कोर्स आउटलाइन में अगर हम फर्दर देखें कि इसमें हम और किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड इंट्रोडक्शन टू लिनक्स और यूनिक्स and processes and threads, in which the subtopics are scheduling algorithms and concurrency, synchronization. Also we will discuss about the deadlocks, memory management, virtual memory, file system and secondary storage management. Different concepts are here about the operating system course: single user system, batch systems, multi-program systems, time sharing systems, a real-time system, and we will discuss about the difference between the interrupts, traps and software interrupts, and also we will discuss about the hardware protection. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, सिस्टम कॉल्स, सिमेंटिक ऑफ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में मोनोलिथिक, माइक्रोकर्नल, लेयर्ड, वर्चुअल मशीन, डॉस, विंडोज़, लिनक्स, फिर सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे. फिर थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम डिस्कशन करेंगे और इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ब्राउजिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और यूज़फुल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर प्रोसेस के चैप्टर पे आएंगे. इसमें हमारे मेजर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स में आने वाले, प्रोसेस क्या है, स्टेट्स उसकी कितनी है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं प्रोसेस के, पीसीबी क्या है, इस पे हम बात करेंगे. फिर हम प्रोसेस स्केजुलिंग पे बात करेंगे, उसमें डिफरेंट स्केजुलर्स जो यूज़ किए जाते हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग टर्म स्केजुलर, मीडियम टर्म स्केजुलर और शॉर्ट टर्म स्केजुलर की बात करेंगे. फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस, फिर उसमें डिस्पैचर का काम हम देखेंगे. फिर ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस में, जैसे कि हम प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, सिग्नलिंग उनके बिटवीन क्या है, सस्पेंड कैसे करेंगे, ये सस्पेंड कैसे होते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेसेस की भी डिटेल में बात करेंगे.
फिर प्रोसेस मैनेजमेंट इन यूनिक्स, उसमें हमारे पास जो फोर्क की कमांड है, वेट की कमांड, एग्जिट की कमांड, एग्जिट की कमांड, इन पर डिस्कशन करेंगे। फिर प्रोसेस में हम इसमें सैम्पल कोड ऑफ लिनक्स यूनिक्स प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का डिटेल में जिक्र करेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी और आईपीसी इन यूनिक्स लिनक्स, उसमें हम पाइप, फीफो, सॉकेट, मैसेज क्यू की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन बिटवीन लिनक्स और यूनिक्स प्रोसेस, कुछ थोड़ा सैम्पल कोड देखेंगे। लिनक्स और यूनिक्स के प्रोसेस में प्रोसेस इमेज कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसको हम देखेंगे। फिर कुछ इसकी डिफरेंट कमांड्स। फिर हम बात करेंगे थ्रेड्स की। थ्रेड का एक मुकम्मल चैप्टर होगा, इसमें हम थ्रेड के कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड क्या है, उसकी स्टेट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उन पे हम बात करेंगे। फिर यूज़र एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या हैं, पोजिक्स थ्रेड्स की बात करेंगे, द पी थ्रेड्स लाइब्रेरी और उसके सैम्पल कोड्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द CPU scheduling, in which the basic concepts of CPU scheduling, what is the scheduling criteria and different scheduling triggers and scheduling algorithms. स्केलिंग एल्गोरिदम्स भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें हम मुख्तलिफ़ जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे जो है हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फिर उसके बाद जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम पे बात करेंगे, मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू पे बात करेंगे। उसके बाद हम यूनिक्स सिस्टम 5 स्केलिंग एल्गोरिदम पे बात करेंगे। फिर ऑप्टिमल स्केजुलिंग क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कैसे की जाती है, इस पे हम बात करेंगे। फिर उसकी एल्गोरिदमिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर जो है डिस्कशन होगी वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे होगी। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे। फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो कैन इफ़ेक्ट और बी इफ़ेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस किसी दूसरे की एग्जीक्यूशन से इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उनके दरमियान फिर एक क्रिटिकल सेक्शन जो आएगा। फिर उस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन करने के बाद उसके सॉल्यूशंस पर भी जाएंगे। फिर 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है या n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, उसके हम मुख्तलिफ सोल्यूशन देखेंगे। जैसे हम 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का पीटरसन सोल्यूशन और n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का बेकरी एल्गोरिदम, ये सोल्यूशन देखेंगे। और जो इसके सोल्यूशंस होंगे क्रिटिकल सेक्शन के, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशंस भी होंगे, हार्डवेयर बेस्ड भी होंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशंस भी होंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर सीमाफोर्स क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बाइनरी एंड काउंटिंग सीमाफोर्स पे डिस्कस करेंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में फर्दर हम क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, फिर हम इसमें डेडलॉक एंड स्टारवेशन, क्रिटिकल रीजन्स क्या हैं, मॉनिटर्स, सिंक्रोनाइजेशन टूल्स यूज्ड इन सोलारिस लिनक्स एंड विंडोज़, फिर डेडलॉक्स एंड स्टारवेशन पे बात करेंगे डिटेल के साथ, पी थ्रेड लाइब्रेरी फंक्शंस। फिर डेडलॉक को हम सेपरेटली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम उसका डेडलॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट, डेडलॉक होता क्या है, अक्कर क्यों होता है, बेसिक रीजंस क्या हैं, फिर डेडलॉक की डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन पे बात करेंगे। डेडलॉक हैंडलिंग कैसे की जाती है, कौन सी अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे 3 अप्रोचेस का जिक्र करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन पे बात करेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस पे बात करेंगे, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी पे बात करेंगे। फिर उसी में डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हम एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम, जो कि हमें डिटेल में समझाएगा कि हाउ वी मे अवॉइड द डेडलॉक। फिर हम मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर पे आएंगे। मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद मेमोरी क्या है, कितनी तरह की होती है,
उसके बाद हम वेरियस टेक्निक्स फॉर मेमोरी मैनेजमेंट पे आएंगे। फिर लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेस ट्रांसलेशन पे आएंगे। स्वैपिंग क्या होती है उस पर डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, उसमें हम MFT और MVT दोनों टेक्निक्स का डिटेल में जिक्र करेंगे। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फिर पेजिंग का कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पेजिंग, और फिर उसके बाद हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और इनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर फर्दर हम परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग, प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग, पेज टेबल इश्यूज, मल्टी लेवल पेजिंग, हैश्ड पेज टेबल्स, इन्वर्टेड पेज टेबल्स, फिर उसके बाद सेगमेंटेशन का टॉपिक, फिर उसमें प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, और फिर इंटेल के एक P4 एग्जांपल लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्चुअल मेमोरी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट, परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, थ्रेशिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कुछ, और कुछ और कंसिडरेशन हमारी होंगी जैसे इनपुट आउटपुट लॉकिंग और पेज साइज़ वगैरह। फिर फाइल सिस्टम इंटरफेसेस पे आएंगे, ये एक नया चैप्टर होगा। इसमें हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, टाइप्स और स्ट्रक्चर वगैरह पे बात करेंगे। एक्सेस मेथड्स में सीक्वेंशियल, रैंडम एक्स्ट्रा पे बात करेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, लिनक्स और यूनिक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे लिनक्स एंड यूनिक्स में उसको देखेंगे। फाइल सिस्टम माउंटिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन, एंड देन लिनक्स और यूनिक्स एग्जांपल्स फॉर शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन। और रेलिवेंट कमांड्स पे जिक्र करेंगे जैसे chmod एंड सो मैनी अदर कमांड्स। इसमें फिर फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में ओवरव्यू ऑफ डिस्क स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, बूट कंट्रोल ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, फिर हम inode, पर प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल, सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल एक्स्ट्रा पे बात करेंगे। फिर डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, फ्री स्पेस मैनेजमेंट मेथड्स, स्पेस एलोकेशन मेथड्स, टाइम एंड स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ एलोकेशन मेथड्स, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क फाइल सिस्टम। फिर हमारा चैप्टर होगा मैस स्टोरेज, स्ट्रक्चर एंड स्केलिंग पे। इसमें हम डिस्क स्ट्रक्चर एंड स्केलिंग और डिस्क मैनेजमेंट में फॉर्मेटिंग, बूट ब्लॉक, बेड ब्लॉक्स एक्स्ट्रा पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मेजर कोर्स आउटलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये आपको लेक्चर साथ साथ जो है वो आपके चैप्टर वाइज आते रहेंगे। तो आज हम ज़रा सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं इस कोर्स का कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक रूह की तरह काम करती है। जैसे इंसान में रूह, इस तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। जैसे रूह के बगैर जो उसकी जिस्म की बाकी सारे का सारा हार्डवेयर है वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है। बिल्कुल इस तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ना तो इंस्टॉल हो पाएंगे और ना ही उस हार्डवेयर को यूज़ करते हुए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं, अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोवाइड अ यूज़र अ सिंपलर मशीन टू वर्क विद, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अ प्रोग्राम दैट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट, फेयर एंड सिक्योर मैनर, और इसको हम रिसोर्स मैनेजर भी कह सकते हैं। और बहुत सारी डेफिनेशंस आप खुद बना सकते हैं, उस लेयर्ड व्यू को देखकर बना सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द यूज़र्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। इस तरह और डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वी कैन नॉट रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द हार्डवेयर। ये भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज़र्स एंड हार्डवेयर। फिर आप मतलब ये डेफिनेशंस आप खुद से बनाएं। आप उस मेन कंप्यूटर सिस्टम के हमने स्ट्रक्चर को देखा कि कंप्यूटर सिस्टम के 4 हिस्से हैं। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप समझें कि ये किस लेवल पे है, तो इसमें आप मुख्तलिफ डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ बताई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स
or to execute a user programs and make solving user programs easier। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इसके गोल क्या है कि मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ एंड यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर्स। तो उन्हीं अल्फाज को तोड़ के इन्होंने मतलब कि डेफिनेशन हमने ऐसी लिखी, आप मज़ीद और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो है वो लेक्चर था। इसके अगर हम दोबारा देखें कि हमने किन चीज़ों को डिस्कस किया, तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट्स थे उनको हमने देखा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसका पर्पस ऑफ क्या है, इस कोर्स का पर्पस क्या है, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हमने देखा कि हमारे पास हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स और यूज़र्स हैं। फिर हमने कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस और फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल की बात की। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आने वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन तमाम पे हमने एक दफ़ा ओवरव्यू हल्का सा देखा और उनके टॉपिक्स देखे, और एंड पे हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये अब चैप्टर वाइज हमारे जो है वो नेक्स्ट सेकंड लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत सारे और सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे मटेरियल मौजूद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।